एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੇ ਲਖ 20, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद सरमखंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता में ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करੈ आनंदो सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै त अंत न अंत तिथै लो अलो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए नारायण नरपत नमस्कारै ऐसे गुर को बल बल जाइए नारायण नरपत नमस्कारै ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए
कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं किछ पारै, अंत नहीं किछ पारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारै, आप मुकत मोह तारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। बिस्म 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 ही पई है, बिस्म 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 ही पई है। लाल गुलाल रंगारै, लाल गुलाल रंगारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारै, आप मुकत मोह तारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। कहो नानक संतन रस आई है, कहो नानक संतन रस आई है। जो चाख गूंगा मुस्कारै, जो चाख गूंगा मुस्कारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारै, आप मुकत मोह तारै, आप मुकत मोह तारै, आप मुकत मोह तारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। बल बल जाइए, बल बल जाइए, बल बल जाइए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਜੋ ਆਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ सुन के आया, मैं सौदा सुन के आया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। मैं सौदा सुन के आया, मैं सौदा सुन के आया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। चरणा के शीस निवाया, चरणा के शीस निवाया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। मैं सौदा सुन के आया, मैं सौदा सुन के आया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। सिमरन कमाल जी एक रूप है, रूप अकाल जी एक रूप है, रूप अकाल जी। प्रेम कुंठ कीता तुसी सिमरन कमाल जी एक रूप है, रूप अकाल जी। नारायण आया, तू आप नारायण आया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। मैं सौदा सुन के आया, मैं सौदा सुन के आया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। मैं शोभा सुन के आया, मैं शोभा सुन के आया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इतिहास में जिक्र आया है महाराजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह, एक बार इसके मन में आया, क्या आज भी कोई है ऐसा आदमी जिसकी आयु 100 वर्ष के ऊपर हो और जिसने अपनी आंखों से श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए हैं? कोई तो होगा। महाराजा रणजीत सिंह ने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, अपने आदमी भेजे कि पता करो कोई ऐसा शख्स हो जिसने अपनी आंखों से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए हों। बहुत ढूंढने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जिसकी आयु 100 साल से ऊपर थी। ध्यान देना साथ से। महाराजा रणजीत सिंह ने उसे अपने दरबार में नहीं बुलाया, नंगे पांव उसके दर्शन करने गया। नंगे पांव कि इस आदमी ने अपनी आंखों से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए। गया उस बुजुर्ग के घर में, नंगे पांव धरती पर बैठा उसके पास। उस बुजुर्ग ने इशारा किया कि मेरे गले में से आवाज नहीं निकलती, पास आ। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कान उसके पास किए। उस बुजुर्ग के अक्षर साथ संगत जी कहने लगा, तू ये जानना चाहता है ना कि दर्शन करके मेरा अनुभव क्या रहा? महाराजा रणजीत सिंह कहने लगा, हाँ मैं यही जानने आया। तो कहने लगा वो बुजुर्ग कि मैं बहुत ही छोटी उम्र का था, छोटा बच्चा था। मेरे माता पिता अनंतपुर साहिब ले गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए। हर कोई नजदीक नहीं पहुंच पाता था, पर मैं खेलते खेलते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नजदीक पहुंच गया। और मैंने दूसरे लोगों को भी देखा माथा टेकते हुए। मैंने खेलते खेलते अपना सर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों से लगा दिया। हर से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और बुजुर्ग चुप कर गया। महाराजा रणजीत सिंह ने हाथ जोड़े कहने लगा, बताओ तो सही फिर क्या हुआ? तो उस बुजुर्ग के अक्षर साथ संगत जी कहने लगा, मैं तुझे ये बोलकर नहीं समझा सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं बोलकर तुझे नहीं समझा सकता, क्योंकि ये गूंगे की मठियाई है। अगर गूंगे को गुड़ खिलाओ और पूछो कैसा है तो वो क्या कहेगा, कैसे एक्सप्लेन करेगा? मैं तुझे इतना बता दूं कि जो आनंद मुझे उस वक्त आया था, जो मेरे मन की अवस्था आज भी उन चरणों के छूने की वजह से है, उस अवस्था के सामने तेरी राजगद्दी तो एक तरफ रही, सारी दुनिया का राज का तख्त भी मुझे कोई दे देना
तो मैं इस आनंद के बदले वो ना लूं। फिर से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरण छूने का जो आनंद है सारे संसार के राज तकत से भी बढ़कर है। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और दो पंक्तियां पढ़े। आए तेरे दर पे नाम दे सवाल जी, आए तेरे दर पे नाम दे सवाल जी, परोसा की चोली दरो जाइए न खाली जी, साडी चोली दरो जाइए न खाली जी, परोसा की चोली दरो जाइए न खाली जी, साडी चोली दरो जाइए न खाली जी, तेरी बख्शिश पावन आया, तेरी बख्शिश पावन आया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ऐसे तो सैकड़ों लेखक हुए हिंदू मुसलमान बहुत सारे अंग्रेज भी जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऊपर किताबें लिखी। एक बहुत बड़ी शख्सियत हुई है लाला दौलत राय। ध्यान देना, लाला दौलत राय 106 साल पहले की घटना। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन पर किताब लिखी तो सारा समाज उनके थोड़ा खिलाफ हो गया। कहने लगे कि आप अपने हिंदू धर्म के महापुरुषों के बारे में क्यों नहीं लिखते। वो कहने लगे मैंने उनके बारे में भी किताबें लिखी हैं। कहने लगे ठीक है, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जितनी उस्तत आपने की है उतनी किसी और की क्यों नहीं की। फिर से बोले धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो उस लाला दौलत राय ने जो जवाब दिया साथ संगत जी, कमाल का। कहने लगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की दो शख्सियतें हैं, दो। एक तो जो सिख जगत उन्हें भगवान मानता है, निरंकार मानता है। लाला दौलत राय कहने लगा मुझे नहीं पता वो भगवान थे कि नहीं। ध्यान देना साथ संगत जी। कहने लगा मुझे नहीं पता उनके अंदर की अवस्था, अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शरीर में बाहर की अवस्था से जो कुछ किया इसकी मिसाल सारे इतिहास में नहीं मिलती। तो हर से बोलिए धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जो शरीर करके भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कर गए उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती, साथ संगत नहीं मिलती। और लाला दौलत राय ने वहां पर 5 पॉइंट रखे, 5 पॉइंट जो दास यहां पर लिख कर लाया है कि कोई छूट ना जाए। लाला दौलत राय कहने लगा गुरु गोविंद सिंह जी जैसा पुत्र कोई नहीं हुआ। पुत्र होते हुए अपने पिता से कह दे कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए जाकर कुर्बानी दे दो, ऐसा कोई पुत्र नहीं हुआ जिसने अपने पिता का बलिदान दिया हो। और जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पिता बने तो ऐसा पिता कोई नहीं हुआ जिसने अपने चारों पुत्रों को कुर्बान कर दिया हो, वो भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा कोई पुत्र, ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा कोई पिता, ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा कोई राजा। जब तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज शरीर करके रहे
ना किसी कोई मस्जिद टूटी, ना कोई मंदिर टूटा, ना कोई मस्जिद ना कोई मंदिर की बेदबी। जंग में लोग कहते हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नियम थे जंग के भी, जंग में सब कुछ जायज नहीं। बुजुर्ग के ऊपर हाथ नहीं उठाना, औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना, कोई पीठ दिखाकर भाग रहा हो उस पर हाथ नहीं उठाना, जो शरण में आ जाए उस पर वार नहीं करना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के असूल आज तक किसी जंग में असूल नहीं माने जाते, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के असूल थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा कोई योद्धा नहीं हुआ। आप हजूर साहब जाते हो, तीर के दर्शन कराते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, कहते हैं तीर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पीछे सोना लगा है, सोना। सिखों ने सवाल किया, पाचा आप हर तीर के पीछे 1 तोला सोना क्यों लगाते हो? तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, इस तीर से अगर कोई घायल हो जाए, क्योंकि सामने से आ रहा हमारा दुश्मन नहीं, हम किसी के बैरी नहीं, मारना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जुल्म का साथ दे रहा है वो। अगर वो जख्मी हो जाए तो अपना इलाज करा ले उस सोने से, अगर मर जाए तो उसके कफन दफन के काम आ जाए ये सोना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा गुरु भी नहीं। एक तरफ सिखों को अमृत की दात दे रहे हैं गुरु बनकर, और दूसरी तरफ खुद 5 प्यारों से अमृत की दात मांग रहे हैं चेला बनकर। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह। आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह, वाह वाह गोविंद सिंह। आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। तेरी बख्शिश पावन आया, तेरी बख्शिश पावन आया। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब आज का प्रकरण ठीक है, हम उस्तत करते जाएं कि गुरु गोविंद सिंह जी बहुत बड़े, बहुत बड़े, आप निरंकार। ये गुरु गोविंद सिंह जी मिले कैसे, हमें कैसे मिले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज? बड़ी ही प्यारी ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी, इस साखी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बड़ी ही प्यारी घटना है। इस साखी में, एक साखी के अंदर
सैकड़ों शिक्षाएं मिलती हैं, सैकड़ों। बड़ी कमाल की साखी है। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ पेशावर से अनंतपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए आया। छोटा सा बच्चा। लाइन लगी हुई है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए। जब इनकी बारी आई तो छोटे प्यारे बच्चे को देखकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, छोटा सा बच्चा, कि जोगा। इतिहास में नाम आया है जोगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लाड में चोज में पूछ लिया कि किधे जोगा, किधे जोगा? उस छोटे से बालक ने भोलेपन से कह दिया, तेरे जोगा। हर से बोले धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लाड से पूछा, किधे जोगा? तो उस बालक ने कह दिया, तेरे जोगा, तेरे जोगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप नारायण, आप परमेश्वर, उस वक्त क्या कह दिया, अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। हर से बोलिए धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक बच्चे से कह रहे हैं, अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। महापुरुष वचन किया करते थे कि जिस प्रकार एक भोला बच्चा कहता है ना, बच्चा, इस प्रकार कहा करो कि मैं तेरा। ध्यान देना, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, दो प्रकार के लोग प्रभु को पा सकते हैं। दो प्रकार के, सिर्फ दो प्रकार के लोग जो प्रभु को पा सकते हैं। एक वो जो अत के भोले हो, अत के भोले, जैसे एक छोटा बच्चा हो, वो प्रभु को पालेंगे। पंडित ने धन्य को पत्थर दे दिया कि ये ठाकुर है। धन्ना पत्थर के पीछे पड़ गया कि खाना खा, खाना खा, खाना खा। उस पत्थर में से ठाकुर को प्रकट होना पड़ा, खाना खाना पड़ा। घर से बोलिए धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद। वाणी कहती है, भोला भाव गोविंद मिलावे। भोला, या तो अत का भोलापन हो तो प्रभु मिल जाता है, या तो अत का तेज दिमाग हो, इतना तेज कि गुरु इशारा भी ना करे, इशारा करने से पहले समझ जाए कि गुरु को क्या चाहिए। ऐसे दो व्यक्ति ही प्रभु को पा सकते हैं, हमारे जैसे चालाक लोग नहीं। से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हम लोग ना भोलों में से हैं, ना हमारी आईक्यू इतनी तेज है। हम चालाक लोग हैं, चालाक, गुरु से भी चालाकियां करते हैं। हमारे मन में कुछ और होता है, गुरु के आगे मांगते कुछ और है। से बोलिए धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जिस प्रकार जोगे ने कहा ना कि मैं तेरे जोगा, उस प्रकार अंदर से मांगो, अंदर से, भोलेपन से। आओ 2 मिनट हम सब ये गा लें, कोई रस्ना खाली न रहे। जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। पातशाह रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के, रख ले निमाना जान के, रख ले गरीब जान के, रख ले निमाना जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के।
गरीब जान के, तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। रख लो बाबा जी निमाना जान के, रख लो बाबा जी निमाना जान अंदर से जीने तेरा, जीने तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। प्यार से बोले धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब उस छोटे बच्चे ने कह दिया मैं तेरा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह दिया जे तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। और साथ संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसके माता पिता से कह दिया कि आप लोग घर चले जाओ, अब ये हमारे जोगा हो गया है। इतिहास में लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे घुड़सवारी विद्या, गुरबाणी कंठ, जो एक सिक्का होना चाहिए अमृत चका के पूरा 9/9 तैयार किया खुद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई जोगे को। क्यों? क्योंकि कह दिया मैं तेरे जोगा। एक बच्चे ने भोलेपन से कह दिया मैं तेरे जोगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे अपने पास ही रख लिया। कई साल बीत गए, नौजवान हो गया, उसके माता पिता आ गए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पातशाह हमारा इकलौता बच्चा है, हमारा मन है अब ये जवान हो गया, इसकी शादी कर दें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अगर जोगा जाना चाहें तो ले जाओ। जोगे को बुलाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे तेरे माता पिता तेरी शादी करना चाहते हैं, तू क्या चाहता है? ध्यान देना साथ संगत। भाई जोगे ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा पातशाह मैं क्या चाहता हूं का क्या भाव, जो आप चाहेंगे वही होगा। अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं जाकर शादी कर लूंगा, अगर आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। घर से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अति के प्रसन्न हुए, उसे घर जाने की आज्ञा दी। कहने लगे जा माता पिता की इच्छा पूरी कर, शादी कर। भाई जोगे को माता पिता ले गए। कुछ दिनों में कोई आदमी आके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को तारीख भी बता गया कि इस तारीख को जोगे की शादी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मन में विचार आया कि कह रहा था कि आप हुक्म करोगे तो जाऊंगा, हुक्म नहीं करोगे तो नहीं जाऊंगा। इसकी बातों में अहंकार था। हर से बोले धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। और जहां पर अहंकार आया, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन कि हर जियो अहंकार न भावे, जहां पर अहंकार आया वहां पर इम्तिहान खड़ा समझो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने सिख को बुलाया, एक सिख को एक चिट्ठी लिख कर दी और क्या कहा, कहने लगे जब भाई जोगे की शादी हो रही होगी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ 4 लावे ले रहा होगा, 4 लावे 2 लावे हो जाएंगी, तो जाकर ये चिट्ठी पकड़ा देना और कहना पढ़। फिर से बोले धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वाह, भाई जोगे की शादी हो रही है साथ संगत, लावा चल रही है। 1 लाव हो गई, 2 लाव हो गई, तीसरी लाव लेने के लिए उठा, सिख ने जाकर चिट्ठी पकड़ा दी। भाई जोगी ने चिट्ठी ली, माथे पे लगाई और जेब में डालने लगा। सिख ने कहा नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म। चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था जो भी काम कर रहा है, जो भी काम कर रहे हैं अभी बीच में छोड़कर इसी वक्त हमारे पास आने के लिए निकल पड़। फिर से बोलिए धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। शादी चल रही है, रिश्तेदार इकट्ठे हैं, सारी बिरादरी इकट्ठी है और चिट्ठी मिल गई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कि जो भी काम कर रहे हैं वहीं पर छोड़कर बीच में अभी के अभी निकल पड़, चल पड़ हमारी तरफ।
भाई जोगे ने साथ संगत जी सच में तीसरी लाव नहीं ली, खड़ा हो गया, अपने माता पिता से कहने लगा मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना है, मेरे गुरु ने मुझे बुलाया है। माता पिता सब बिरादरी हैरान होने लगी, कहने लगी 2 लावें बाकी हैं, ये तो पूरी कर जा, इसमें क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को थोड़ा पता है कि तेरी लावें चल रही हैं। भाई जोगा कहने लगा अगर 2 लाव के बाद में गया ना तो मेरा गया ना गया एक बराबर है। गुरु का हुक्म है जो काम कर रहा हूं बीच में छोड़कर निकल, तो मैं बीच में से छोड़कर जाना है मुझे। ध्यान देना साथ संगत जी, सारी बिरादरी लड़ रही है, झगड़ रही है उससे, आखिर में उसके माता पिता ने उससे कह दिया, ये वक्त आ गया, आखिर में माता पिता ने कह दिया कि तू हमारे लिए मर गया, अगर तू लावे बीच में छोड़कर गया तो सारी बिरादरी में हमारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम तेरे लिए कुछ भी नहीं। तो भाई जोगी ने क्या कहा, महापुरुष इसकी धारणा पढ़वाया करते थे, कहते थे असली गुरु का सिख ऐसा होता है जहां पर गुरु सामने आ जाए वहां पर सारी दुनिया को पीठ दे देता है। तो हर से बोले धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। भाई जोग्य को उसके घर वाले कह रहे हैं, उसकी बिरादरी कह रही है कि 2 लावे और पढ़ ले, हो जाने दे, उसके बाद चला जा। वो कहने लगा नहीं, गुरु का हुक्म है, माता पिता ने कह दिया तू आज से हमारे लिए मर गया। भाई जोग्य ने क्या कहा, मेरा रुसे न कलगिया वाला, जग पावे सारा रुस जे, मेरा रुसे न कलगिया वाला, जग पावे सारा रुस जे, सारा रुस जे, रुसे ना फल गया वाला, जब पावे सारा रुसे, मेरा रुसे ना फल गया वाला, जग पावे सारा रुस जे, मेरा रुसे ना फल गया वाला, जग पावे सारा रुसे, जग प्राण से बोले धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज। अब भाई जोगा अपने घोड़े पर सवार हो गया और चल पड़ा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरफ। चलते 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 शाम हो गई, होशियारपुर पहुंचा। ऐतिहासिक घटना है ये, होशियारपुर पहुंचा। अब होशियारपुर पहुंच के शाम के वक्त इसके मन में ख्याल आया, साथ संगत जी क्या ख्याल आया कि सिख तो बहुत हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, बहुत सिख हुए हैं, पर मेरे जैसा हुक्म मानने वाला सिख तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कोई नहीं हुआ। तो जो अपनी शादी बीच में छोड़कर गुरु का हुक्म मानने चल पड़े, ऐसा सिख तो कोई हुआ ही नहीं होगा। मन में अहंकार आ गया, और जैसे ही भाई जोग्य के मन में अहंकार आया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब में बैठे हैं, अंदर की जान गए कि मेरा सिख में अहंकार आ गया है, और गुरु का तो काम है, गुरु तो अहंकार का डॉक्टर है। जैसा सतगुरु सुनीदा पैसो ही में डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ, हर नामो मंत्र दृढ़ाइंदा, कट्टे हम रोग, कट्टे हम रोग। अहंकार गुरु का काम है कि अपने सेवक के अंदर से अहंकार को मिटाना, क्योंकि जब तक अहंकार है प्राप्ति नहीं हो सकती।
जब तक अहंकार है प्राप्ति नहीं हो सकती। एक लोहे की डब्बी में पारस का टुकड़ा पड़ा है, ध्यान देना साथ संगत जी। एक लोहे की डब्बी में पारस का टुकड़ा पड़ा है, पारस लोहे से छू जाए तो वो सोना बन जाता है, पर वो लोहे की डब्बी लोहे की ही है। खोल कर देखा तो उस डब्बी और पारस के बीच में एक पतला सा बारीक कागज है। महापुरुष समझाने लगे यही है अहंकार। गुरु है पारस, हम है लोहे। अगर अहंकार है तो सोना नहीं बन सकेंगे। तो गुरु ये कागज निकालता है, उसके अपने ढंग हैं। हर नाम में मंत्र दृढ़ायंदा कट्टे हम रो। पवनंद सिंह जी महाराज के वचन, जहां पर अहंकार आया वहां पर इम्तिहान खड़ा है, वहां पर इम्तिहान खड़ा है। शेख सादी, ध्यान देना बड़ी कीमती बात है। शेख सादी बचपन में अपने पिता के साथ हज करने गए। अमृत वेला हुआ, सुबह के 3 बजे वो और उसके पिता हर रोज की तरह अमृत वेले उठकर बैठ गए, पर बाकी सब थके हुए थे, वो अमृत वेले नहीं उठे। जब सुबह 6 बजे उन्होंने अपनी बंदगी की समाप्ति की तो शेख सादी अपने पिता से कहने लगा कि हम लोग कितने अच्छे हैं, अमृत वेला संभाल लिया, सुबह की नमाज संभाल ली, और ये लोग सोए रह गए, इन्होंने गवा दिया। शेख सादी के पिता कहने लगे तू भी सोया रहता तो अच्छा था। फिर से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। शेख सादी कहने लगा ऐसा क्यों कहा पिताजी? उसके पिता कहने लगे तू भी सोया रहता तो अच्छा था, तुझे अमृत वेले उठकर अहंकार हो गया है कि तू अमृत वेले उठा है और दूसरों की निंदा करने लगा जो सोए रह गए हैं। तूने अपना किया कराया सब गवा लिया निंदा करके, इससे अच्छा तू भी आज सोया रहता। कहने का भाव, जिस अमृत वेले उठने से अहंकार आ जाए वो अमृत वेला भी किसी काम का नहीं। निमरता, गुरु को पाने का ढंग है निमरता, मन निवा हो। अब भाई जोगे को अहंकार आ गया, घोड़े पे गुजर रहा है, बेसवा का चौबारा है रास्ते में, बेसवा का चौबारा। जब वहां से गुजरा गली में से उसे गाने बजाने की आवाज आई, मन में काम उत्पन्न हो गया। फिर से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इतना बड़ा गुरु का सिख, इतनी अवस्था पर अहंकार किया, मन भटकने लगा। मन किया क्यों ना थोड़ी देर जाकर वेस्पा पे कोठे पे समय बिताऊं। फिर शर्म आ गई कि लोग क्या कहेंगे, गुरु का सिख हूं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो होशियारपुर में एक धर्मशाला में जाकर ठहर गया कि रात को जाऊंगा। फिर से बोले धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। श्री गुरु गोविंद। और तो पंक्तियां पढ़े ताकि मन जुड़ा रहे गुरु के चरणों से। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। चरणा के शीस निवाया, चरणा के शीस निवाया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अब आधी रात हो गई। भाई जोगा अपने कमरे से बाहर निकला और चल पड़ा। कहां? गुरु का सिख कहां चल पड़ा? बेसवा के कोठे की तरफ। जैसे ही कोठे के बाहर पहुंचा, क्या देखता है? एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बड़ा तगड़ा पहरेदार खड़ा है, सिख पहरेदार, डंडा लेकर। उसे देखकर घबरा गया।
और वापस आ गया। पर मन पे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर उठा, थोड़ी देर बाद चल पड़ा। जब गया तो उस पहरेदार ने डांटा कि भाई लगता तो गुरु का सिख है, तेरा कोठे पे क्या काम? चेहरे से गुरु का सिख लगता है, तेरा कोठे पे क्या काम? बेसवा के पास तेरा क्या काम? चल जा यहां से। भाई जोगा घबरा गया, वापस आ गया। काफी समय बीता, मन पे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर उठा। साथ संगत जी, यहां पर एक बात याद आ गई मुझे। महापुरुष वचन किया करते थे, बड़े ही कीमती वचन। कभी भी किसी बात का अहंकार मत किया करो कि मैं कुछ बन गया हूं। इस मन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़ों को जमीन पर गिरा दिया इसने, बड़े बड़ों को। वो साधु की घटना याद कर लिया करो। एक साधु गंगा के स्नान पे जाया करता था हर रोज। रास्ते में वेश्या का कोठा था, हाथ में कुत्ता पकड़ कर रखा हुआ था वेश्या ने। रोज एक सवाल पूछती थी, ये साधु तेरी दाढ़ी अच्छी या मेरे कुत्ते की पूंछ? साधु को चिढ़ाती थी कि तेरी दाढ़ी अच्छी या मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी? तो वो साधु कभी कोई जवाब नहीं देता था। पर जब उस साधु का अंत समय आया, अपने सेवादारों से कहने लगा उस वेश्या को बुला कर लाओ। सेवादार कहने लगे अंतिम समय है, लोग क्या कहेंगे? साधु कहने लगा लोगों की बात छोड़ो, उस वेश्या को बुला कर लाओ। वेश्या आई, साधु ने कह दिया तेरे कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी अच्छी है। प्यार से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वेश्या बड़ी हैरान हुई कि ये सवाल तो मैं कब से पूछ रही हूं आपसे, आज क्यों जवाब दिया? आज जवाब देने की क्या जरूरत थी? पहले कह देते। कहने लगे नहीं, मैं पहले नहीं कह सकता था, क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं कोई गलत काम कर बैठता जीते जी, अगर कभी तेरे दरवाजे पर चला आता जीते जी, तो मेरी दाढ़ी से तेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी होती। कैसे बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पर अब मेरा अंतिम समय है, श्वासें आखिरी ले रहा हूं। अब मैं मान से कह सकता हूं कि मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते की पूंछ से ज्यादा अच्छी है। कहने का भाव, इस मन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। निम्रता में रहेंगे, गुरु का हाथ सर पे रहेगा। अहंकार करेंगे, हाथ हट जाएगा, हम डोल जाएंगे। निम्रता में। अब भाई जोगे ने सोचा कि ये पहरेदार से मैं क्यों डरूं? लगता है इसका मालिक अंदर गया होगा, ये बाहर खड़ा है, मैं क्यों घबराऊं? इस बार गुस्से से गया। अब समय हो चुका था, 3 बज चुके थे, सुबह के अमृत वेला हो चुका था। इस बार जब भाई जोगा गया तो पहरेदार ने उसे धक्का दिया और साथ में कहा, अरे गुरु का सिख है, अमृत वेला हो गया है, समय देख, तेरे हाथ में गुटका होना चाहिए और तू बेसवा के कोठे की तरफ आ रहा है। जब पहरेदार ने ये लफ्ज कहे तो उसका हृदय कांप गया कि अमृत वेला हो गया है, ये तो सिमरन का समय है और मैं बेसवा के कोठे पर जा रहा हूं। शर्मा कर, घबरा कर और पश्चाताप करते हुए वापस जा रहा है। पर फिर से एक बार वापस आया, इतिहास में लिखा है वापस आया। पहरेदार ने घूरा, कहने लगा नहीं, मैं ऊपर जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये पूछने आया हूं, तू बार बार मुझे कहता है कि तू गुरु का सिख लगता है, गुरु का सिख लगता है, यहां क्या कर रहा है? तू भी तो गुरु का सिख है। तू अमृत वेले वेश्या के दरवाजे पर खड़ा क्या कर रहा है? तू भी तो गुरु का सिख है। तो पहरेदार कहने लगा मैं अपनी मर्जी से नहीं खड़ा हूं, किसी को वचन दे बैठा हूं, उसको निभाने के लिए खड़ा हूं। तो हर से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। भाई जोगे ने सोचा हो सकता है भाई जोगे को बात समझ में नहीं आया। उसे लगा हो सकता है कि मालिक ने इसे हुक्म किया हो, अपनी मर्जी से ना करा। आ गया।
अमृत वेला संभाला, घोड़े पे सवार हुआ, अनंतपुर साहब पहुंचा। अब अनंतपुर साहब में जैसे ही अंदर गया, संगतें बैठी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने आसन पे बैठे हैं। आज एक चोंच बरता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कभी सिर इस प्रकार गिरा लेते हैं, कभी उठा लेते हैं, जैसे कि रात से सोए ना हो, जैसे कोई रात भर सोया ना हो। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन कि गुरु कभी सोता नहीं। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, कई लोग कहते हैं कि गुरु नानक सो रहा है। कहते थे नहीं, कहा करो कि आराम कर रहे हैं, सो नहीं रहे। जिस दिन गुरु नानक सो गया उस दिन परलो आ जाएगी। तो से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद चोंच बरता रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। भाई जोगे ने माथा टेका और कहने लगा, पातशाह लगता है रात को आपने आराम नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, जोग्या जगावे भी तू और पूछे भी तू। भाई जोगा कहने लगा, पातशाह मैंने कब आपको जगाया? कहने लगा, सारी रात वेश्या के कोठे के बाहर पैर पे खड़ा रहा मैं तेरे रोकने के लिए, तुझे रोकने के लिए। सारी रात बेसरा के दरवाजे पर पहरेदार बनकर मैं खुद खड़ा रहा कि मेरा सिख कहीं डोल ना जाए। और तू कहता कि मैंने जगाया कब? जोगा के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। साथ संगत जी हाथ पर कांपने लगे, चरण पकड़ लिए, जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, पातशाह वो तू था, वो तू खड़ा था वहां पर पैरे पर, क्यों खड़ा था बेसरा के दरवाजे पर? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, याद कर जब तू छोटा था, तू आया था, तूने कहा किधर जोगा? मैंने पूछा, तूने कहा तेरे जोगा। और मैंने भी कह दिया कि अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। अब तुझे वचन दे दिया था, वो निभाने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा। राइटर ने साथ संगत जी कमाल की पंक्तियां लिखी है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। राइटर की अपनी भावना है। राइटर लिखता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भाई जोगे से कहते हैं, 5वें जामे में मैं तपती तवी पर बैठा, मुझे दुख नहीं हुआ। 9वें जामे में मैंने अपना सर कलम करवा दिया, मुझे दुख नहीं हुआ। पर 10वें जामे में मुझे एक सिख ने बेसरा के दरवाजे पर आधी रात को खड़ा किया, यह दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते कि मुझे नहीं पता था कि 10वें जामे में कोई सिख मुझे बेसरा के दरवाजे पर भी खड़ा कर देगा। इस साखी से क्या शिक्षा मिलती है? साथ संगत क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले कि गुरु को अपना बनाना है तो अंदर से कहो मैं तेरे जोगा, उसका हुक्म मानो। हुक्म, गुरु का हुक्म जिसने मान लिया, नदर की बात आ गई। नदर क्या थी? 31 दिसंबर की रात को टॉपिक था नदर। गुरु की नदर कैसे मिले? कैसे मिले? जो गुरु के हुक्म में रहता है, गुरु को उसकी रक्षा करनी पड़ती है। भाई जोग्य ने हुक्म माना, चिट्ठी लेकर शादी छोड़कर चल पड़ा, गुरु के हुक्म में था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को खुद पहरेदार बनकर उसे बचाना पड़ा। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म क्या है सबको पता है। घुमा फिरा कर बात कहां पर आने वाली है? कहां पर? अमृत वेला। फिर से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और 2 पंक्तियां पढ़े, फिर एक छोटी सी बात कि अमृत वेला क्यों जरूरी है। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का गुरुपुरब है, जयकारे का शब्द न हो, ये हो नहीं सकता। पूरा उल्लासनगर गूंज जाना चाहिए। बोले सोनिहार
फतेह बुलाए गुरु की जित्य रण धारा। सच फतेह बुलाए गुरु की जित्य रण धारा। करतारा तिज पंथ चलायो खालसा नर तेज करारा। सिर के स्तार कर खड़क को सब दुष्ट पचारा, सब दुष्ट पचारा। बोले सोनिहार सत श्री अकाल, बोले सोनिहार सत श्री अकाल। सुनकर ऐसी चमक को गिर भारा, हम संकट ने हलचल करी छाड़े कर बारा। तो ऐसे धुंध कलेश में कप्यो संसारा, फिर बिन सतगुर को है न काटन हारा, न काटन हारा। बोले सोनिहार सत श्री अकाल। फतेह बुलाए गुरु की जित्य रण धारा। फतेह बुलाए गुरु की जित्य रण धारा। यो उपजे सिंह भुजंगिए लंबर धारा। दुर्ग दुष्ट सब छह के हर नाम उचारा। इन आगे घोड़ा ठहरे हो भागे सिरदारा। जय राजे शाह अमीर रे होए सब चारा, होए सब चारा। बोले सोनिहार सत श्री अकाल। कैसे खड़ग दिखाऊं जो सके न चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला, आपे गुरचेला। बोले सोनिहार सत श्री अकाल, बोले सोनिहार सत श्री अकाल। हे रब हे सस हे करुणानिध, मेरी अभय विनती सुन ली। और न मांगत हो तुम देखत, चाहत हो चित में सोई। शस्त्र सोमत हिरण पीतल दूज मरोता साज। संत साय सदा जगमाय कृपा कर जावे, कृपा कर जावे है बदी जय बार दीजय। बोले सोनिहार सत श्री अकाल, बोले सोनिहार सत श्री अकाल। गगन दमामा बाजयो पर्यो निशान गाओ। ये जो मांडयो सूरमा अब जुजन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन गए, जो लड़े दिन गए। पुरजा पुरजा कट में कबू न छाड़े के, कबू न छाड़े के, कबू न छाड़े के, ना छाड़े के। बोले सोनिहार सत श्री अकाल, बोले सोनिहार सत श्री अकाल। अस कृपान खंडो खड़ तुम तबर अरतीर। सैसरोनी सैती यह हमारे वीर। तीर तू ही सैत तू ही तबर तलवार। नाती हारो जो जपे भयो सिंध भवपार। काल तू ही तू ही तेग
भाव की औध निधान बने अधहीरण में तुम जूझ अधहीरण में तुम जूझ मरो अधहीरण में तुम जूझ मरो बोले सोनिया साथ जगा बोले सोनिया साथ जगा खंड विहंडन खलदल खंडन अद्रण मंडल भरमंडल फुलदंड्य खंडन तेज प्रचंडन ज्योत मंडल पांडव सुख संता करणं दुर्मत तरणं किलबिल हरणं असरणं जय जय जगदारण श्रेष्ठ उवारण मंगल पालन जय ते गण अमृत पालन जय ते गण 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 बोले सोनिहा बोले सोनिहा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा 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 दिन रात मैं तेरा शुक्र करा हर पल में तेरा शुक्र करा जब होवे हनेरा शुक्र करा जब होवे सवेरा शुक्र करा सुख दुख सब तेरा शुक्र करा तुझ भी नहीं मेरा शुक्र करा कण कण विच तेरा शुक्र करा दिसदा है बसेरा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा 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 संता के कारज आप खलोया संता के कारज आप खलोया हर काम करा काम करा आया राम संता के कारज आप खलोया संता के कारज आप खलोया शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा 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 धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक।
पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याऊं। जो पर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोए राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंदा। हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए सब जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चेटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान। जब उद करख करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह करख करत हूँ कब मैं बिनत दे तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने मोजे उदार। तुम सब ही ते रहत निरालम वेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा। तांको कर पान अनुमानित महामूढ़ कछ भेद न जान। महान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव। आप आपनी बुध है जेती तो पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा। अंडज जेरज से तज कीने कुछ खान बहो रच देने। कहूँ कुल राजा हव बैठा समट प्यो संतरे बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्बव। अब रक्षा मेरी तुम करो असग संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी पर इनके दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने है। रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट संजाय निहारो आके ताप तनक मोहर। और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाछ सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए उमारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोग ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी। सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोग ते ले बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी। सर्व टोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए।
सतगुरु मैं पाया, सतगुरु का पाया सहज से की मन वजिया वाधाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां। गावो हरि तेरा मन जिनि वसाया। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरा तू सदा रो हर नाले। हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। नाम रसम स्वामी सुख मनो विसारे। करे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिदे सो पावे। सदा सदा तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द मेरे। कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया। कुर्बान किया गुरु मिटो दिसिया ए वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो सबत रो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंज शब्द घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे कल्ला जी करतारियां। पंज भूत वस कीते काल कंटक मारिया। परम पाया तू जिनको से नाम हटे लागे। कहे नानक दस को आदित करे अनंत वाजे। मन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे। संताप उतरे सुनी सच्ची बानी। संत साधन पाए सबसे पूरे गुटे जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रे अपर पूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलो। पवन गुरु पाणी पिता माता तक महात। जिसराब दाई दया खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाजे धर्म हदूर। करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ते आया। जिन्नी नाम ते आया। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओ वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ते आया। जिन्नी नाम ते आया। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले खेती छोटे नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह।
जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्र करा मैं शुक्र करा गुरु जी त्वाडा शुक्र करा। शुक्र करा मैं शुक्र करा गुरु जी त्वाडा शुक्र करा। पल पल शुक्र करा हर पल शुक्र करा मेरे गुरु जी हर पल में त्वाडा शुक्र करा। त्वाडा नाम जपा मंत्र जाप करा मेरे गुरु जी हर पल में त्वाडा शुक्र करा। शुक्र करा मैं शुक्र करा गुरु जी त्वाडा शुक्र करा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैनू दिया है सहारा शुक्र करा दिया मैनू है गुजारा। शुक्र करा मैनू दिया है सहारा शुक्र करा दिया मैनू है गुजारा। शुक्र करा अरदास करा गुरु जी विनती करा। अरदास करा गुरु जी विनती करा मेरे गुरु जी हर पल में त्वाडा शुक्र करा। त्वाडा नाम जपा मंत्र जाप करा। त्वाडा नाम जपा मंत्र जाप करा मेरे गुरु जी हर पल में त्वाडा शुक्र करा। शुक्र करा मैं शुक्र करा गुरु जी त्वाडा शुक्र करा। दिया सोना परिवार ओदा शुक्र करा दिया मैनू घर बार ओदा। शुक्र करा दिया सोना परिवार ओदा शुक्र करा दिया मैनू घर बार ओदा। शुक्र करा मेरा हथ जो फड़ा किता उपकार बड़ा। मेरा हथ जो फड़ा किता उपकार बड़ा मेरे गुरु जी हर पल में त्वाडा शुक्र करा। त्वाडा नाम जपा मंत्र जाप करा। त्वाडा नाम जपा मंत्र जाप करा मेरे गुरु जी हर पल में त्वाडा शुक्र करा। शुक्र करा मैं शुक्र करा गुरु जी त्वाडा शुक्र करा। ममग समगग सनिग नीगग। मैनू चरना नालो जोड़ा ओदा। शुक्र करा दुख दर्दा नू मोड़ा ओदा। शुक्र करा मैनू चरना नालो जोड़ा ओदा। शुक्र करा दुख दर्दा नू मोड़ा ओदा। शुक्र करा त्वाडा नाम जपा मंत्र जाप करा। त्वाडा नाम जपा मंत्र जाप करा मेरे गुरु जी हर पल में त्वाडा शुक्र करा। त्वाडा नाम जपा मंत्र जाप करा। त्वाडा नाम जपा
जपा मंत्र जाप करा मेरे गुरु जी हर पल में तुहाडा शुक्र करा शुक्र करा मैं शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा पल पल शुक्र करा हर पल शुक्र करा मेरे गुरु जी हर पल में तुहाडा शुक्र करा तुहाडा नाम जपा मंत्र जाप करा मेरे गुरु जी हर पल में तुहाडा शुक्र करा शुक्र करा मैं शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिव जी सदा गुरुजी
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।